A wonderful good morning to my lovely Patans. So, welcome back in your computer class, and I hope you all are enjoying your classes. So, in the last class, we have discussed about Microsoft Word. So, today we are going to repeat the components of Microsoft Word window and will learn how to select the text using the mouse and using the keyboard. Okay. So, let's revise, and whatever we have done in the last class, I hope you all have revised. So, let's start now. So, this is your desktop screen. Now, first we have to open the Microsoft Word. As I told you earlier, we can open the Microsoft Word from the taskbar if the icon is there. You can see the Word icon here. और अगर डेस्कटॉप पे आपका वर्ड आइकन अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन you have to click on all apps, then click on Microsoft Office, and from there you will open the Microsoft Word. जो भी वर्ज़न आप का अवेलेबल है आपके पास कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वही आप ओपन करेंगे. सो आई विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एंड द विंडो ऑफ वर्ड विल ओपन. So this is your Microsoft Word window. Now the topmost bar, first we'll talk about its component. हम Microsoft Word window के components के बारे में पढ़ेंगे. So this you can see at the topmost bar is the title bar. The topmost bar is the title bar where you can see the name of the document and the name of the program, name of the application जो भी हम use कर रहे हैं. So as you will see here, you can see that here it is written document 1. So document 1 is the by default name of the document. बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो खुद से ही ऑटोमेटिकली आता है. तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमेशा आपको जो नाम मिलेगा दैट विल अपीयर डॉक्यूमेंट 1. ओके, एंड हेयर यू कैन सी द नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं. सो हेयर वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, सो टाइटल बार हमारा डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड of the title bar, sorry, on the right side of the title bar, these are the window control buttons. These are the window control buttons. First one is minimize. I will take the mouse pointer there, you will see the name, you can read the name minimize. So minimize से क्या होता है, जैसे ही हम minimize पे click करेंगे, see where is the document gone, it is minimized to the टास्क बार. ये हमारा मिनिमाइज होके टास्क बार पे आ गया. ये हमने क्लोज नहीं किया है, वो क्लोज नहीं हुआ है, उसको जस्ट हमने मिनिमाइज किया है. और मिनिमाइज होके आप देख सकते हैं जो वर्ड का आइकन है उसके नीचे एक ब्लू लाइन है. इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट, ये वर्ड फाइल अभी ओपन है. ओके, अगर ये ब्लू लाइन आपको नज़र नहीं आएगी इट मीन्स वो क्लोज हो चुका है. जैसे बाकी सब के नीचे आप देख सकते हो कोई भी लाइन नहीं है, इट मीन्स वो प्रोग्राम ओपन नहीं है. सो अगर हमें दोबारा से लेके आना है तो हम टास्क बार पे वर्ड के आइकन पे लेके जाएंगे माउस पॉइंटर एंड विल क्लिक वंस एंड विंडो विल अपीयर अगेन. ओके, नाउ द सेकेंड इज यू विल सी हेयर, नोटिस इट केयरफुली that here you can see 2 square boxes. एक के पीछे एक 2 square boxes हैं. So when I'll take the mouse pointer on it, you will see the name. It is restore down. So it is restore down button. restore down button का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम restore down button पे क्लिक करेंगे जो हमारे वर्ड की विंडो का साइज़ है it will decrease. ओके,
नाउ यू कैन नोटिस ओनली सिंगल स्क्वायर इज देयर. सो जब हम इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, नाउ यू कैन रीड आउट द नेम, इट इज़ मैक्सिमाइज. सो मैक्सिमाइज मीन्स टू इंक्रीज द साइज. सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी विंडो का साइज इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज विंडो कंट्रोल बटन्स एंड द लास्ट दिस क्रॉस वन इज क्लोज बटन. अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना है तो हम इस क्रॉस बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टाइटल बार, here you can see what is this. These are the buttons. You can see this is the save button, then we have undo, then we have redo, then we have shapes option, then we have open option. So this is quick access toolbar. On the left side of title bar we have quick access toolbar. When you will click on this drop down arrow, you can see जिन पे टिक लगा हुआ है, these commands are already there on the quick access toolbar. अगर इनमें से हमें कोई रिमूव करना है तो हम उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगा. अगर हमें कुछ ऐड करना है तो वी कैन क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. तो हमारा ये देखो न्यू ऑप्शन भी आ गया है. दिस इज़ द न्यू बटन बाय यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. ओके, सो एज इट्स नेम क्विक एसेस टूल बार. क्विक मीन्स जल्दी, एसेस मीन्स उसको यूज़ करना, ओपन करना. सो वी कैन यूज़ द कमांड्स फ्रॉम क्विक एसेस टूल बार टू सेव आवर टाइम. ओके, नाउ you can see whenever you will open Microsoft Word, you will always get home tab here on your screen. So all these tools and commands you are seeing here, what we call that? Yes, we call it ribbon. We call it ribbon. तो ribbon क्या display करता है? Ribbon is used to display groups and their commands. As you can see, under home tab we have clipboard group, then font group, then paragraph group, then styles group, then we have editing group. So हर एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं और उन कमांड्स को भी रिबन डिस्प्ले कर रहा है. सो रिबन इज़ यूज टू डिस्प्ले द ग्रुप्स एंड देयर कमांड्स. ओके, नाउ this small blinking line you can see here, what we call it? Very good, we call it cursor, और इसे हम insertion point भी बोलते हैं. So ये cursor, ये insertion point हमें बताता है कि हम text टाइप करना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. जहाँ पे ये cursor होगा वहीं पे हम text टाइप कर सकते हैं. उसके अलावा हम कहीं पे भी text टाइप नहीं कर सकते. ओके, so as I will type here something, this is computer class I have written here. Okay, now how will I select this text? मैं इसको कैसे select करूँगी? One method is that we can use the mouse. So mouse को use करने के लिए हमें क्या करना है? Just take the cursor at the start और at the last. या तो starting पे रखो या end पे रखो. Then press the left mouse button, keep the button pressed and drag over it. जो भी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर ड्रैग करेंगे एंड देन रिलीज द माउस बटन, द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड. ओके, अब इसका अगर हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है, अभी आप देख रहे हो तो बहुत काफ़ी छोटा है ना टेक्स्ट का साइज़. तो टेक्स्ट का साइज़ हम कहाँ से इंक्रीज़ करते हैं? हियर यू कैन सी दिस 11 रिटन. सो दिस इज़ द फॉन्ट साइज़. ये क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़, आपके टेक्स्ट का साइज़. सो जब भी आप ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये हमेशा 11 ही मिलेगा.
और यहाँ पे जो ये कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है, दिस इज़ द फ़ॉन्ट, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट एक्चुअली क्या होता है, हैंड राइटिंग स्टाइल होता है कि किस हैंड राइटिंग स्टाइल में आप टाइप करना चाहते हैं टेक्स्ट को। सो यू कैन ऑल्सो चेंज दिस, just click on the drop down arrow, select whatever font you like and you can increase the size. Now you can see here, अगर अब आपको इसको बोल्ड करना है तो B for बोल्ड, B पे क्लिक करेंगे। इटैलिक करना है तो इटैलिक में क्या होता है, ये थोड़ा स्लांट हो जाता है टेक्स्ट, जैसे आपकी स्लांटिंग लाइन होती है ना। अगर अंडरलाइन करना है तो विल क्लिक ऑन द U ऑप्शन, अंडरलाइन, then text color. Here you can see this is the font color or text color. So when we'll click on it, you can set any color. आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये आपका चेंज हो गया है। अब यही चीज़ आप देखो, अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके किया है, ये आप विदाउट सिलेक्टिंग टेक्स्ट भी कर सकते हो। मीन्स आप टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें सेट कर सकते हो और फिर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। लाइक आई विल प्रेस एंटर की हेयर, और अब मुझे जो टेक्स्ट है वो दूसरी हैंड राइटिंग स्टाइल में दूसरे फॉन्ट में चाहिए, देन आई विल सेलेक्ट दैट फॉन्ट। If I want to decrease the size, I will decrease the size, and if I want to change the color, I will change the color, and if I don't want underline, I will remove it. Click on the U again. Now I can type. We are doing MS Word. So now you can see, तो टाइप करने से पहले भी हम ये चेंजेस कर सकते हैं। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव हियर, व्हाट इज इट, व्हाट वी कॉल दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस रूलर को, ये स्टार्टिंग का पोर्शन एंड इधर ये एंड का पोर्शन, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट नहीं है। अगर आप बीच का पोर्शन देखोगे तो वो वाइट है। सो दिस इज़ द लेफ़्ट मार्जिन एंड दिस इज़ द राइट मार्जिन। अब लेफ़्ट मार्जिन क्या होता है, लेफ़्ट मार्जिन होता है जो आपका ये कंप्लीट पेज है। सो पेज के बॉर्डर से और जहाँ पे आपका कर्सर है, जहाँ से हम टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट मार्जिन। इन द सेम वे जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है, फ्रॉम देयर एंड द पेज बॉर्डर डिस्टेंस वी कॉल इट राइट मार्जिन। सो लेफ़्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। ओके, ये आप पॉइंट्स देख सकते हो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यूजिंग दीज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लाइक हम पॉइंटर लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, कीप द बटन प्रेस्ड एंड जस्ट ड्रैग इट। देखो लेफ्ट मार्जिन कम हो गया। इन द सेम वे हम राइट मार्जिन भी कम कर सकते हैं। Okay, so this is how you can set the left and right margin. And here you can see this is the vertical ruler. So vertical ruler हम किस लिए use करते हैं, it is used to set the top margin and the bottom margin. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉप मार्जिन आपका यहाँ पे ब्लू शेडेड है, और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सो यू विल सी द बॉटम ऑल्सो। बॉटम का भी ये पार्ट ब्लू है। सो दिस इज़ द बॉटम मार्जिन एंड दिस इज़ द टॉप मार्जिन। सो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे लेके आएंगे कर्सर, इट विल चेंज इनटू
डबल हेडेड एरो आप देख सकते हैं, ये डबल हेडेड एरो में चेंज हो गया है और यहाँ पे लिखा भी है टॉप मार्जिन। सो लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना है एंड जस्ट ड्रैग इट, कम करना है तो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे टुवर्ड्स अप, और अगर ज़्यादा करना है तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। सो आप देख सकते हैं इन द सेम वे वी कैन सेट द बॉटम मार्जिन। सो टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल रूलर। ओके, नाउ हेयर ऑन द राइट साइड दिस इज वर्टिकल स्क्रोल बार। अगर पेज को हमें अप एंड डाउन मूव करना है, आप देख सकते हैं अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं हम। सो फॉर मूविंग द पेज अप एंड डाउन वी यूज़ वर्टिकल स्क्रोल बार, हम वर्टिकल स्क्रोल बार यूज़ करते हैं। ओके, आप जस्ट माउस पॉइंटर को वर्टिकल स्क्रोल बार पे लेके जाएं और माउस के स्क्रोल व्हील से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रोल बार पे लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए, बटन को प्रेस करके रखिए एंड जस्ट ड्रैग द माउस अप एंड डाउन। ओके, और इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द डॉक्यूमेंट साइज, वर्ड विंडो का बॉटम बार होता है स्टेटस बार। दिस इज़ द स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है? नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ऑन द राइट साइड द जूम ऑप्शंस। जूम ऑप्शन किस लिए होते हैं? आपके डॉक्यूमेंट के साइज़ का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। तो माइनस साइन पे क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ कम हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखो जो साइज़ बड़ा हो गया। अब आप देख सकते हो जैसे ही हमने साइज़ बड़ा किया, आपका जस्ट स्टेटस बार के ऊपर एक और बार आ गया और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज़ यूज्ड टू मूव द पेज लेफ़्ट एंड राइट। अगर हमें लेफ़्ट और राइट में मूव करना है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। तो साइज़ बड़ा हो गया तो हमने बिल्कुल हमारे पेज के सामने कंप्लीट टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज़ करके हमारा कंप्लीट टेक्स्ट देख सकते हैं। ओके, हेयर यू कैन सी पेज 1 ऑफ 1। पेज 1 ऑफ 1 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 है और करंटली अभी हम पेज 1 पे ही वर्क कर रहे हैं। एंड हेयर यू कैन सी हाउ मैनी वर्ड्स वी हैव टाइप्ड। कितने वर्ड्स टाइप किए हमने? यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 वर्ड्स। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 9। सो वर्ड्स, सारे वर्ड्स को काउंट करके हमें यहाँ पे शो करता है दैट हाउ मैनी वर्ड्स वी हैव रिटन इन आर डॉक्यूमेंट। हमें अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। ओके, अभी मैंने आपको बताया था टेक्स्ट को सिलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ माउस। अगर हमें इसी टेक्स्ट को कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट की और शिफ्ट की के साथ एरो की। लाइक यू विल सी हियर दिस इज़ द शिफ्ट की एंड दीज आर द एरो कीज। सो इफ आई वांट टू सिलेक्ट downward, I will press the shift key and I will press down arrow key. So जैसे ही मैं नीचे प्रेस करते चलूँगी जो भी टेक्स्ट डाउनवर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर अपवर्ड करना है तो I will press the up arrow key. ओके, और अगर कर्सर आपका जहाँ पे है, सपोज कर्सर इज़ माई हेयर, यहाँ पे कर्सर है और मुझे कर्सर के लेफ़्ट साइड वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सो इन दैट केस आई विल यूज़ द शिफ्ट की, प्रेस द शिफ्ट की, कीप द की प्रेस्ड। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। नाउ कीप प्रेसिंग द लेफ़्ट एरो की एंड यू विल सी
कीप प्रेसिंग जब तक कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो जाता। ओके, सो अगर राइट साइड का करना है तो हम शिफ्ट की के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा राइट साइड का टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, so this way we can select the text using the keyboard. Okay, saving a document, you all know how to save a document. 3 methods we have, as I told you. One is you can use the shortcut key Ctrl+S. Second is you can use the save button available on the quick access toolbar. Third, you can click on the file tab and click on the save option. इन द सेम वे अगर आप कोई भी ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, सो सेम 3 मेथड्स है हमारे पास. यू कैन यूज़ द ओपन बटन अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+O, एंड यू कैन क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन ओपन. आप इनमें से किसी भी ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. यू कैन सी द ओपन डायलॉग बॉक्स हेयर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे दे विल बी विजिबल हेयर. यू कैन सी द डॉक्यूमेंट्स हेयर, और इनमें से आपको जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन you will select that document and click on the open button, and then that will be opened. Okay, so you can see here. So just revise this, and if you will have any doubt, any query, I am here to help you. आप मेरे से पूछ सकते हैं without any hesitation. Okay, in the next class we are going to have a quiz on it, and I am going to ask you the question. So better be prepared for it and do the practice of typing as well. Those who are having computer or laptop at their home, do practice. And wherever you are having facing any problem, I am here to help you. Okay, so till then, take care. We'll meet in the next class. Thank you.